Hello friends. In last lecture, I explained the first method to calculate the regression equations. Now in this method, explain you the second method, regression coefficient. There are two regression lines, x on y and y on x. X equals to a plus by and y equals to a plus bx. Now, in first method, we write x minus x bar r standard deviation of x upon standard deviation of y, y minus y bar. Y minus y bar r standard deviation of y upon standard deviation of x and x minus x bar. These equations are used when all things are given, all arithmetic mean, standard deviation, correlation coefficient, all things are given. Then we use these equations to calculate the regression equations or to find a estimated value. If these values are not given, that is x bar, r, standard deviation, y bar, these are not given and only two series x and y, suppose price and demand is given, then how will you calculate the regression equations? In that case, this equation is not applicable because here we have to find x bar, r, standard deviation of x and standard deviation of y. So here this is the regression coefficient. As there are two lines of regressions, so the coefficient of regression are also of two types, that is regression coefficient of x on y and regression coefficient of y on x. जैसा कि आप जानते हैं कि प्रतिपगमन की दो रेखाएं होती हैं, तो यहाँ पर प्रतिपगमन गुणांक जो होता है वो भी दो होता है, x का y पर और y का x पर प्रतिपगमन गुणांक, और ये जो चीज हमने लिखी है इसे ही हम regression coefficient कहते हैं. It is, these both are regression coefficient. These are regression coefficients. It is bxy and it is byx. bxy का मतलब होता है regression coefficient of x on y and इसका मतलब होता है regression coefficient of y on x. So bxy and byx, we can replace this r standard deviation x upon standard deviation of y byx in this equation. इस इक्वेशन में, इस समीकरण में हम इसकी जगह r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y की जगह bxy लिख सकते हैं, और इस इक्वेशन में r bx स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x की जगह byx लिख सकते हैं, क्योंकि ये रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है और रिग्रेशन कोफिशिएंट को हम bxy और byx से डिनोट करते हैं. तो इस इक्वेशन को हम वापस कैसे लिख सकते हैं? x on y, y on x, x minus x bar, bxy, y minus y बार. इस इक्वेशन में हमने इस चीज को स्टैंडर्ड रिग्रेशन कोफिशिएंट को bxy से रिप्लेस कर दिया और इस इक्वेशन में y माइनस y बार को byx से रिप्लेस कर दिया x माइनस x बार.
तो यहाँ जब हम देखते हैं कि हमें सिर्फ दो सीरीज गिवन होती है, प्राइस और डिमांड, एक्स और वाई, तो हमें कितनी चीज़ें निकालनी होगी, एक्स बार निकालना होगा, वाई बार निकालना होगा, आर निकालना होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई निकालना होगा। लेकिन जब हम ये इक्वेशन यूज लेते हैं तो हमें सिर्फ तीन चीज़ ही कैलकुलेट करनी है, एक्स बार, वाई बार और रिग्रेशन कोफिशिएंट। अब क्योंकि रिग्रेशन कोफिशिएंट दो तरह का होता है, एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स, तो उनके फॉर्मूले अलग अलग होते हैं। इनके फॉर्मूले वही फॉर्मूले बेस्ड हैं जो कोरिलेशन में थे। अब अपन रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के फॉर्मूले देखते हैं कि हाउ विल यू कैलकुलेट रिग्रेशन कोफिशिएंट डायरेक्टली। Regression coefficient. There are two regression coefficient and there are two series, statistical series, that is individual series and discrete and continuous series। वैसे तो स्टैटिस्टिक्स में तीन सीरीज होती हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज। बट अर्थमेटिक मीन निकालना होता है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना होता है, रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालना होता है, तो हमें इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में वही फॉर्मूला लगता है जो डिस्क्रीट में लगता है, और कंटिन्यूस में भी वही फॉर्मूला लगता है जो डिस्क्रीट में लगता है। इसे हम बाद में देखेंगे। इंडिविजुअल सीरीज में रिग्रेशन कोफिशिएंट फाइंड करने के दो मेथड होते हैं, सेम जैसे कोरिलेशन में होता है। वन इज डायरेक्ट मेथड एंड अनदर इज शॉर्टकट मेथड। bxy equals to sigma dx dy upon sigma dy square and byx equals to sigma dx dy upon sigma dx square. It is the simple formula for the calculation of regression coefficient in individual series by direct method. व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्यक्ष रीति द्वारा प्रतिगमन गुणांक ज्ञात करने के लिए ये दो सिंपल फॉर्मूले हैं, bxy इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ dx dy अपॉन स्टैंडर्ड सिग्मा dx dy अपॉन सिग्मा dy स्क्वायर, byx इक्वल्स टू सिग्मा dx dy अपॉन सिग्मा dy स्क्वायर। यहाँ ध्यान ये रखना है आपको कि dx जो निकलेगा वो x माइनस एक्स बार से और dy जो निकलेगा वो y माइनस वाई बार से। दैट मीन्स बाय एक्चुअल मीन, डेविएशन इज टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन। वास्तविक माध्य से गुणांक, विचलन गुणांक लिया गया है। इन शॉर्टकट मेथड bxy इक्वल्स टू n इंटू सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy अपॉन n इंटू सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। जब आप बी एक्स वाई निकाल रहे हैं तो नीचे डी वाई स्क्वायर रखना है, जब बी वाई एक्स निकालते हैं तो नीचे डी एक्स स्क्वायर रखना है। एक्स और वाई का मतलब क्या है, ये है रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई, मतलब वाई इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसलिए वाई को नीचे रखना है, डी वाई को। इसमें एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देयरफॉर यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में डी एक्स को रखना है। सेम हियर, यहाँ पर भी सेम वही करना है, ऊपर वाली चीज़ सेम रहेगी। यही चीज़ हम सेम कोरिलेशन के फॉर्मूले में भी लिखते हैं, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में। और डिनोमिनेटर वाली जो चीज़ें होती हैं उसको हम दो टुकड़े करते हैं, उसके टू पार्ट्स करते हैं। वाई वाला जब वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक्स वाला जब एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। बी वाई एक्स इक्वल्स टू एन इंटू सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई अपॉन n इंटू सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर। और यहाँ हमें क्या ध्यान रखना है, डी एक्स जो निकलेगा दैट इज़ x माइनस ए और डी वाई जो निकलेगा वो y माइनस ए, दैट इज़ एज्यूम मीन। हमने विचलन जो निकाले हैं वो कल्पित माध्य से निकाले हैं, एज्यूम करके निकाले हैं। तो दीज two formula are used for the calculation of regression coefficients
in individual series. Now in discrete and continuous series, just put f in front of these values. And there is only one method for the calculation of regression coefficient in discrete and continuous series. In discrete and continuous series, there is only one method, that is shortcut, same as in the correlation coefficient. जब हम सहसंबंध गुणांक ज्ञात करते हैं तब भी डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में एक ही फॉर्मूला होता है शॉर्टकट का, वो होता है बी एक्स वाई. यहाँ अपन रिग्रेशन कोफिशिएंट का यूज ले रहे हैं एन इंटू सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा एफ डी एक्स इंटू सिग्मा एफ डी वाई अपॉन n इंटू सिग्मा एफ डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ डी वाई का होल स्क्वायर इंटू आई एक्स अपॉन आई वाई. बी वाई एक्स इक्वल्स टू n इंटू सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा एफ डी एक्स इंटू सिग्मा एफ डी वाई अपॉन n इंटू सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू आई वाई अपॉन आई एक्स. नाउ हियर ऑल्सो डी एक्स इज कैलकुलेटेड अपॉन आई एक्स एंड डी वाई इज कैलकुलेटेड वाई माइनस ए अपॉन आई वाई. आई एक्स मीन्स class interval of x and iy means class interval of y. So these are the formula for the regression coefficient. प्रतिपगमन गुणांक ज्ञात करने के लिए इन सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज हो, व्यक्तिगत श्रेणी हो, चाहे वो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस खंडित या अखंडित श्रेणी हो. इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके समझाऊंगा कि हम किसी भी क्वेश्चंस की इक्वेशन, रिग्रेशन इक्वेशंस को कैसे फाइंड किया जा सकता है. थैंक यू सो मच. होप आप लोगों को समझ में आया होगा. अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में या मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.